Now let's come to the second part, Black Aeroplane. The second part has a mysterious element to it. Writer ने इसको mysterious बनाने के लिए एक supernatural element भी डाला है story में. Let's quickly go through the summary. So this chapter or the text begins with a pilot flying from France to England. He is very happy and excited because he is going to England to meet his family. He is happy that he will be completing his flight soon, and after landing he'll go back straight to his home and enjoy a lavish English breakfast. The journey was smooth, everything was going properly and he was very happy, but all of a sudden the weather changes. Everything changes. He encounters a massive storm. अचानक से काले बादल घिराते हैं, उसके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स जो है कम्प्लीटली फेल होने लगते हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, इंजन भी फेल होने वाला है, ऑयल जो फ्यूल है प्लेन को उड़ाने के लिए वो भी बहुत कम है कि वो वापस पेरिस चला जाए, ऐसा भी नहीं कर सकता. सो ही इज़ इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड व्हाट टू डू. साथ ही में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. ही इज़ वेरी मच टेरिफाइड दैट इफ़ ही कैन नॉट गेट आउट फ्रॉम द स्टॉर्म देन ही इज़ श्योर टू डाई. He is trying continuously to establish a connection with the Paris control room, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है. क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है. And when he has lost all the hopes, all of a sudden he notices that a black aeroplane is just flying beside him. अभी तक पूरे आसमान में उसे कोई और एरोप्लेन दिख नहीं रहा था. जब वो इस ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं तो उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और उस एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट इस पायलट को सिग्नल करता है फॉलो करने के लिए. सो विद नो अदर ऑप्शन लेफ्ट द pilot starts following that black aeroplane, and after a moment or so finally he is rescued. He does a safe landing. By the time he comes out of the storm he could see the runway, and once he lands his flight he quickly reaches the control room where he wants to inquire about the pilot and the black aeroplane who basically helped him out of the storm, right? But to his amazement, the lady says that रडार पे तो कोई और एरोप्लेन था ही नहीं. उन लोगों ने देखा कि पूरा चेक किया लिस्ट, एंड देखने के बाद बताया कि आज इस पर्टिकुलर पायलट के अलावा कोई और पायलट उस वक्त फ्लाई ही नहीं कर रहा था. दिस इज अ सुपर नेचुरल एलिमेंट फॉर this pilot. Now the pilot, though he is safe, he is happy that somehow his life has been saved, but he is left in confusion that who was that pilot who helped him out. कहाँ गया वो ब्लैक एरोप्लेन, कहाँ से आया और कहाँ ही गायब हो गया, और किसने उसकी मदद की. So this particular portion adds the supernatural element to the story and leaves the pilot and the readers in state of confusion कि what happened. ये एक मिस्टीरियस सी बात है कि अचानक से कैसे ही वेदर अच्छा था वो कैसे बिगड़ गया, और वेदर के बिगड़ते ही एरोप्लेन भी कैसे जो है काम करना बंद हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो गए, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और कहाँ से अचानक वो ब्लैक एरोप्लेन आया, सेफली पायलट को गाइड किया और फिर कहाँ ही गायब हो गया. ऑलराइट, सो दीज वर द टू स्टोरीज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ let us discuss the important questions that can come from this chapter, जो बन सकते हैं इस चैप्टर में से. from his first flight, पहले पार्ट में से जो सीगल वाला पोर्शन है वहाँ से पहले हम देख लेते हैं. fear and courage का डिस्कशन हुआ है. थीम है चैप्टर का फियर एंड करेज. कैसे करेज को यूज़ करके हमें अपने फियर को ओवरकम करना है. तो अगर हम उसको देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज द यंग सीगल टेरिफाइड टू फ्लाई, हाउ डिड हिज सेल्फ डाउट मैनिफेस्ट. सो वेरी वेरी सिंपल. द यंग सीगल हैड नेवर फ्लोन बिफोर एंड ही वॉज fearful because he thought that the moment he would fly or even try to fly he will fall down, he will drop as a stone and he will hurt himself or he even might die, and that is why he was not even initiating his flight, right? And his self doubt completely did not manifest, but yes, when he took the first flight, like when he jumped towards the food that his mother had brought for him, actually he slipped and he was dropping at a great speed. He thought he was about to die, but he did not die at all.
All right. So in this way, you have to answer this question mentioning his fear and why was he fearful and his reaction because of fear, what all he was doing. All right. Next, parental role. The chapter deals with his parents and his brothers and sisters also. They play a vital role because they were trying to encourage the seagull initially, and not only encourage, later on, because the seagull was not getting courage, they even threatened him. So they played a very, very important role to push the seagull to fly, right? So when you answer, the question can come in this way: how did his parents' encouragement or threats push him to overcome his fear? So his parents were trying continuously that somehow this seagull should overcome his fear. किसी तरीके से वो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ले. उसको पहले उन लोगों ने जो है सिखाने की कोशिश की कि कैसे उड़ना है, बट सीगल जो है थोड़ी सी दूर जाता, लेकिन जैसे ही फ्लाई करने का मौका आता वो पीछे भागाता. उसको यही डर लगता कि कहीं मैं नीचे समुद्र में ना गिर जाऊँ, सी में गिर ना जाऊँ. ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. काफ़ी समझाने के बाद भी जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि ये तो सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी, सीगल जो है बार बार डर के मारे छुप जाता है, तो उन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया. और जब फिर भी काम नहीं हुआ, तब उन्होंने उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अब अगर तुम नहीं उड़ोगे, इफ़ यू डू नॉट फ्लाई, देन nobody is going to help you out, nobody will bring food also. उन्होंने ऐसा ही किया. उन्होंने उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया. वो कई बार रोता रहा, उनकी तरफ चीखता रहा, पुकारता रहा भूख के मारे. इवन कुछ देर के लिए तो बेहोशी का नाटक भी करने लगा, लेकिन उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर ने कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर दिया. उसकी मम्मी उसके लिए फ़िश पकड़ के लाई भी, लेकिन उन्होंने उसको उसके मुंह में दिया नहीं. इनिशियली उसकी मम्मी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खिला देते थे, लेकिन उस दिन पर्टिकुलरली उन्होंने वो भी नहीं किया. वो एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे, थोड़े से दूरी पे जाकर रुक गई, ताकि सीगल जो है उसी लालच में कम से कम छलांग लगा दे. और सीगल ने ऐसा किया भी. एक्चुअली ही जम्प्ड टू कैच दैट फिश, राइट? बट दिस इज द मोमेंट व्हेन ही एक्चुअली टुक अ डीप flight and he started flying. For the first time he realized that he can overcome his fear. ठीक है. So they played a very important and crucial role in overcoming the fear. Clear? तो आपको वो सारे इंसिडेंट्स जो है कोट करने हैं आंसर को लिखते वक्त, और फिर इस आंसर को लिखना है. द फर्स्ट फ्लाइट, जो पहली उड़ान उस सीगल ने भरी, जब वो मछली को पकड़ने के लिए, बेसिकली जो फूड उसकी मम्मी पकड़ के लाई थी लेकिन दे नहीं रही थी, जब उसने छलांग लगाई उसको पकड़ने के लिए और वो गिरा, और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए जब उसने अपने पंख फैलाए और जिस तरह से उसने सी पर लैंडिंग की, उसको तब भी लैंडिंग करते वक्त भी वो डर रहा था कि कहीं वो डूब ना जाए. एंड फाइनली व्हेन ही रियलाइज्ड कि नो, ही इज़ अलाइव, वो डूबा नहीं है, एंड उसने कहीं ना कहीं सक्सेसफुली अपनी पहली उड़ान पूरी करी है, तो उसका वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो सेंस ऑफ जॉय, उसके पेरेंट्स का, उसके फैमिली मेम्बर्स का अप्रिसिएशन, उसके लिए चीयर करना, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. सो डिस्क्राइब द सीगल्स फीलिंग ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, टेरर टर्निंग टू जॉय. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इसको आंसर करते वक्त, कि इनिशियली ही वॉज टेरिफाइड, उसका मन जो है पूरी तरह से डर से भरा हुआ था. उसको लगा बस आज तो उसको कोई नहीं बचा सकता, आज तो उसका अंत निश्चित है. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वो नीचे गया, उसने अपने पंख फैलाए, उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो उड़ सकता है. और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उसने लैंडिंग की, एंड फाइनली when he realized that no, he is not going to sink in the water, he is safe and he has successfully completed his flight, then he also was overjoyed, he was happy. And of course his family members also cheered him up, joined him, they praised him, they were all happy for him, so he naturally was happy. So इस तरीके से आपको जो है पूरी फ्लाइट को डिस्क्राइब करना है कि when he initially jumped and then finally when he landed. तो पूरा जो सीक्वेंस है उसको आपको डिस्क्राइब करते हुए उसको टेरर को किस तरह से हैप्पीनेस में जो है डर बदल गया उसको आपको बताना है. ठीक है. थीम, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट फेसिंग फियर्स एंड सेल्फ रिलायंस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बेसिकली
ये आपसे पूछ रहा है कि चैप्टर कैसे आपको सिखा रहा है कि सेल्फ रिलायंस क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम अपने डर को जीत सकते हैं या फिर डर के ऊपर काबू कर सकते हैं। पूरी स्टोरी ही उसी एक थीम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। यू हैव टू कोट द एग्जाम्पल ऑफ द सीगल ओनली, स्टेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ द सीगल यू हैव टू टेल लाइक वाइज, कि जैसे सीगल डर रहा था वैसे ही कई बार हम भी पहली उड़ान, यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट है वो बेसिकली सिम्बलाइज करती है फर्स्ट स्टेप टू इनिशिएट समथिंग, राइट। तो कैसे हम लोग भी कई बार किसी काम को करने से पहले डर जाते हैं, होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब करने से पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस सोच के बैठ जाते हैं। तो कैसे हमें करने से पहले इतनी सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं है, पहले इनिशियल स्टेप तो इनिशिएट करना है ना। जब तक हम वो ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता कि आगे आने वाला रास्ता अच्छा होगा बुरा होगा, हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, राइट। हम घर पे बैठ के कैसे बोले कि हम गाड़ी चला ही नहीं सकते, हम कार ड्राइव ही नहीं कर सकते। हम ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे या ड्राइव करने की कोशिश करेंगे किसी एल्डर के साथ जिसको आता है अच्छे से चलाना, वो गाइड करेगा। हम इनिशियली प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किस जगह पे हमें कमी आ रही है या क्या चीज़ है जो हमें ओवरकम करनी है या किस चीज़ पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। सो दैट इज़ वाई टू progress in life or to work out, you need to overcome fear. That is very important. You need to have control. ठीक है, fear is something to be feared. Nothing else has to be feared. सिर्फ डर से ही डरो और किसी चीज़ से मत डरो. That is more important. Clear? So it is very important that if something seems to be fearful, you need to face that fear of yours. आप उसका सामना कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाएगा. Right? And you will become self-reliant. Now coming to the text of Black Aeroplane. Black Aeroplane में से कुछ questions आ सकते हैं. चैप्टर में एक mystery element है तो वो question के form में आ सकता है, right? So सबसे पहले उसी पे आ जाता है the mystery. What was the strange black aeroplane and who was its pilot? Now when you answer this question, this is something mysterious only. We don't know. This is the theme or element of mystery in the chapter. So no description has been given about that particular black aeroplane. Even the chapter has ended on this note only, that who was that pilot and where did that black aeroplane vanish. So if this question is asked, so you will answer ki strange about black aeroplane was that it appeared from nowhere and then again disappeared nowhere, right? कहीं से कहीं था नहीं, जब पायलट फ्लाई कर रहा था तब कहीं दूर दूर तक ब्लैक एरोप्लेन का नामो निशान नहीं था, राइट? ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक एरोप्लेन आया, उसको गाइड किया, उसको बाहर निकाला तूफान से, सेफ लैंडिंग करवाई और फिर अचानक से गायब हो गया बिना कोई ट्रेस छोड़े. सो दिस वॉज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, द अपीयरेंस of the black aeroplane suddenly, the beautiful guidance that he gave to the pilot for a safe landing, and again it vanished somewhere without leaving any trace behind, right? So that is very strange about the black aeroplane. Remember some lines from the chapter कि उस aeroplane की जो wings थे उसमें lights भी नहीं थी, so you can mention that also. Clear? And who was its pilot? So we don't know who was its pilot. This is something in doubt, but you can answer that we can assume that that pilot was some guardian angel who helped the pilot to overcome that fearful situation. All right, तो उससे ज़्यादा तो हम कुछ पता लगा ही नहीं सकते बिकॉज यही मिस्टीरियस एलिमेंट है चैप्टर का. सो यू कैन सिंपली से कि कोई गार्जियन एंजल था जिसने उस पायलट की मदद की. ठीक है. डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो कैसे हो सकता है? व्हाई डिड द नैरेटर रिस्क फ्लाइंग इनटू द डेंजरस स्टॉर्म? सी चैप्टर में शुरू में ही ये मेंशन्ड है, जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं तभी मेंशन्ड है कि ही वॉज flying from France to England and he was very excited that he will soon reach his family and enjoy a lavish and wonderful English breakfast with them. So somehow there was a sense of excitement and he wanted to reach his family as early as possible.
तो जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, दैट ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल ऑल्सो। या तो वो वापस जा सकता था या वो आगे जा सकता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द चांस। ही टुक द चांस दैट आई विल रिस्क ओनली, आई समहाउ not abort my mission, I will not go back, instead I will fly ahead. All right, so you can mention both the things कि first thing that he was very excited to reach his family as early as possible, and secondly he did not have enough fuel also कि वो आसमान में ही चक्कर लगाता रहे या एक बार पेरिस जाए और फिर वापस आए, इतना तो उसके पास फ्यूल ही नहीं था। सो दोनों को मेंशन करते हुए you can mention कि that is why he took the risk for flying. All right, नेक्स्ट गाइडेंस, कैसे उस ब्लैक एरोप्लेन ने गाइड किया। हाउ डिड द मिस्टीरियस प्लेन प्रोवाइड हेल्प एंड लीड हिम टू सेफ्टी। तो इसमें आपको पूरा जो है आंसर लिखते वक्त एक्सप्लेन करना है। यू शुड स्टार्ट योर आंसर बाय कोटिंग दैट द प्लेन वॉज फ्लाइंग स्मूथली, द जर्नी वॉज गुड, बट ऑल ऑफ अ सडन द वेदर चेंज्ड एंड द पायलट वॉज सराउंडेड विद ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स एंड हिज इंस्ट्रूमेंट स्टार्टेड फेलिंग. He tried to establish a connection with the control room, but he failed. And this is the time when he was full of terror. And this is the moment when he thought that maybe he will not be able to overcome this situation without any guidance or help. And that particular moment, this black aeroplane appeared from nowhere. He was rejoiced when he saw another aeroplane. He thought with no other option left, let me follow this only. जब उसने उस ब्लैक एरोप्लेन को नोटिस किया, पहले तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि कहाँ से इस तूफान में ये प्लेन आ गया, बट उसे थोड़ी सी राहत भी मिली कि चलो कोई तो है, शायद इस प्लेन को ही गाइड कर दे। उसने उस पायलट की तरफ देखा, पायलट ने भी इशारा किया फॉलो करने का, तो उसने उस प्लेन को फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली आफ्टर अ बिट ऑफ टर्बुलेंस एंड ऑल, दे वर सक्सेसफुली एबल टू ओवरकम and come out of the stormy clouds and finally they did a safe landing. तो आपको वो पूरा सीन जो है इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इस पायलट को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया एंड फाइनली सेफ लैंडिंग में मदद की. द एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीव्स द रीडर्स इन मिस्ट्री, राइट. रीडर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ ये ब्लैक एरोप्लेन था. द लास्ट पार्ट, दैट इज द एंडिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट लीव्स द रीडर्स इन मिस्ट्री, राइट. हम भी एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि सच में ही कहाँ गया वो ब्लैक एरोप्लेन. वॉट मेड द एक्सपीरियंस सो बैफलिंग एंड मिस्टीरियस एट द एंड. सी, दिस एक्सपीरियंस गॉट मिस्टीरियस एंड बैफलिंग बिकॉज क्वाइट नेचुरल, पूरा आसमान क्लियर था, वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था. अचानक उस तूफान में एक और एरोप्लेन, अचानक उस एरोप्लेन का आ जाना और उस पायलट का उसको सेफली लैंड करवाना, ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री एलिमेंट ऐड कर रहा है. फर्दर इसके भी ऊपर किसी चीज़ को ऐड करना ये था कि जब उस पर्टिकुलर पायलट ने जाकर इंक्वायरी किया कि कहाँ था वो ब्लैक एरोप्लेन और कौन था वो पायलट, सो दैट ही कुड थैंक दैट पायलट, है ना, for extending help. He was informed that no other plane was flying that day. कोई और प्लेन उस दिन उड़ान ही नहीं भर रही थी. तो फिर वो कौन था जिसने उसकी मदद की थी? तो वो पायलट तो हक्का बक्का रह ही गया. He was baffled. Even the readers, जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है हम सब ने, तब हम लोग भी चौंक गए हैं फिर वो था कौन, राइट. So that is why the experience was mysterious and baffling because there was no trace from where the black aeroplane and the pilot appeared and where later on they disappeared. Symbolism, what might the black aeroplane symbolize? तो यहाँ पे black aeroplane किस चीज़ को symbolize कर रहा है? देखो, ब्लैक एरोप्लेन की चर्चा बहुत हो रही है. इनफैक्ट जो टाइटल है वही ब्लैक एरोप्लेन है क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन ही इस चैप्टर को एक मिस्टीरियस एलिमेंट दे रहा है, एक सुपर नेचुरल इफेक्ट दे रहा है, राइट. अब क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन अचानक कहीं से आया, गाइड किया, सेफली लैंडिंग करवाई और फिर गायब हो गया, सो वी कैन नॉट कम्प्लीटली कमेंट अबाउट द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन, बट वी कैन गेस दैट मे बी
it was the pilot's good faith that some guardian angel guided him, right? It was his inner strength, maybe, that took a shape of imagination, that some aeroplane is flying and it guided him. So anything can happen. So this is something you have to answer with your imaginative skills. You can term the black aeroplane as a guardian angel, the pilot of the black aeroplane, all right, and you can add the elements of faith, inner strength and all to answer this particular question. Clear? Now, since the chapter has two stories about flying, both the stories are based on flying concept only, so common themes and connections can be drawn out, and based on that certain questions can be asked. So let's go through them also. Overcoming obstacles, दोनों ही चीज़ों में अपनी बाधा, ठीक है, सेंस ऑफ फियर को ओवरकम करना दिखाया है. पहले पार्ट में सीगल ने अपने फ्लाइंग के फियर को ओवरकम किया है. सेकेंड पार्ट में जो पायलट था उसने तूफान में से खुद को निकाला है. किस तरीके से वहाँ पे भी वो डरा हुआ था, कैसे वो वहाँ से निकला, उस सिचुएशन में से निकला, वो दिखाया गया है. सो ये एक कॉमन फैक्टर है. फियर जो है वो एक कॉमन फैक्टर है दोनों ही पार्ट्स में. हाउ डू बोथ स्टोरीज शो कैरेक्टर्स फेसिंग डॉन्टिंग चैलेंजेस, राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों में ही आप दिखा सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ शोन दैट द यंग सीगल इज फ्राइटेंड टू फ्लाई, इवन ही इज नॉट रेडी टू इनिशिएट हिज फर्स्ट स्टेप, राइट. द मोमेंट ही wants to take the flight, he just looks down, and the moment he observes the sea, he thinks that once he takes the flight, he will get drowned. So that fear stops him from taking the first flight. In the same way, the dangerous storm, the black clouds, all create a atmosphere of mystery, danger, which was quite challenging for the pilot, right? He was initially happy, but his excitement and happiness turn into terror very soon because of the challenges that he faces during the storm. So these all incidents you need to face and show how the stories show daunting challenges for seagull as well as the pilot. Help in trouble, दोनों ने ही अपने फियर को ओवरकम किया, दोनों ही मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकले, और अकेले तो नहीं निकले, राइट. कोशिश की, उन्होंने हिम्मत की, लेकिन बिना मदद के सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे वो. तो उनकी मदद अलग अलग लोगों ने की है. फॉर एग्जांपल सीगल की जो स्टोरी है वहाँ पे पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा काम किया. उसके पेरेंट्स ने, उसके फैमिली ने बहुत ज़्यादा मदद की उसकी अपने फियर को ओवरकम करने में, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से उसके पेरेंट ने इनिशियली उसको एनकरेज किया सीगल को, और लेटर ऑन जब वो एनकरेजमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया था, इग्नोर करना शुरू कर दिया कि अगर तुम फ्लाई नहीं करोगे तो फिर देख लो कि अपना गुजारा कैसा करना है, तुम्हें कोई ना तो मदद करेगा, कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा. एंड फाइनली ही टुक द फर्स्ट फ्लाइट, राइट. सिमिलरली यहाँ पर फैमिली ने मदद नहीं किया. पायलट जब फ्लाई कर रहा था तो वो एक्साइटेड था, उसको अपने फैमिली तक पहुंचने का एक एक्साइटमेंट था. तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव जो है उसको मजबूर करता है कि वो रिस्क ले. तूफान में भी प्लेन उड़ाने का रिस्क लेना, ये उसके फैमिली से मिलने का उसका जो इच्छा थी तीव्र, वही था, राइट. ही वॉन्टेड टू एन्जॉय अ मील विद हिज फैमिली. So that's what made him to risk his life also. He started flying in the storm also. He did not go back. But at the same time, you have to mention the presence of the supernatural element also, the black aeroplane. The black aeroplane suddenly appeared from somewhere and it helped. Basically, it guided the pilot in the Dakota plane to fly safely, right? उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने ही तो डकोटा प्लेन के पायलट को सपोर्ट किया, हेल्प आउट किया, गाइड किया, तभी तो वो इजीली तूफान से निकला ना. तो दोनों ही केसेस में उन लोगों ने अकेले फियर को ओवरकम नहीं किया है. कहीं ना कहीं उनके आसपास की परिस्थितियाँ, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने उन दोनों को मदद किया है इस फियर को ओवरकम करने में और चैलेंज को सक्सेसफुली फेस करने में, राइट. रियल लाइफ पैरेलल्स,
हाउ डू दीज फिक्शनल फ्लाइट्स रिलेट टू रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर पीपल नीड करेज? हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें डर का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे कई बार हम लोग डर जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे गाइड कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई आपका बड़ा जिसके साथ आप बहुत ईजीली बातें शेयर करते हो, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग हमारी लाइफ में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से हम अपने डर को ओवरकम कर पाते हैं। क्लियर? सो सिंपली आप कह सकते हैं कि दोनों स्टोरीज पढ़ने के बाद as a reader we can come to a conclusion that to overcome such challenging situations one need support from the people around us, right? It can be a support from the family members, it can be a support from the friends or anybody, any stranger also. For example, सीगल के family members ने उसको जो है cheer up किया, encourage किया, threaten किया। लेकिन वहीं अगर हम डकोटा प्लेन के पायलट को देखें, उसके बारे में रीड करें, तो वहाँ पर जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे, उनके आपस में कोई भी रिलेशंस नहीं थे, राइट? और बाद में भी कहीं पे उस ब्लैक एरोप्लेन या उस पायलट का ट्रेस नहीं मिला, तो आगे भी इसकी संभावना नहीं है कि आगे चल के भी कोई अच्छा कोऑर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। सो कई बार हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ऐसे फियरफुल सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे आसपास के लोग हमें मदद करते हैं। वो हमारे नोन भी हो सकते हैं या कम्प्लीटली स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। सो करेज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन एनी फॉर्म, ठीक है। बस हमें देखने की ज़रूरत है, इंस्पायर होने की ज़रूरत है और अपने फियर को ओवरकम करने की ज़रूरत है। I hope you have understood how to answer these questions. So children, with this we are done with another chapter from your textbook First Flight. I hope now you are well prepared about this chapter also. You are clear how to answer the questions that can come up from this chapter. एक बात का ध्यान रखिए बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा या इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के आ सकता है, पर जो मेन थीम है, जो स्टोरी है मेन, वो चेंज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है, और आंसर जो है चैप्टर में से ही आएगा, तो उसी से रिलेटेड होगा। आपको थॉरो रीडिंग करनी है। अगर आप थॉरोली चैप्टर को रीड करेंगे तो आप आंसर किसी भी फॉर्म में आ जाए उसे ईजीली आंसर भी कर पाएंगे। सो बाय बाय बिजी बीज, कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।